नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्टअप की दुनिया में चल रहे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज आपके सामने पेश करने वाले पहले हिंदी शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। हमारा मकसद है इन सक्सेस स्टोरी से प्रेरणा लेकर आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करें। आज हमारी नजर है फ्रेश फूड सेक्टर पर। दक्षिण भारत का पैकेज लेकिन फिर भी फ्रेश और सेहतमंद फूड ब्रांड आईडी फ्रेश की जर्नी काफी रोचक है। देखते हैं कैसे आईडी फ्रेश की टीम ने सबके पसंदीदा इडली और डोसा को बनाया है एक कामयाब और ग्लोबल बिजनेस। भारतीय महिलाओं के बदलते लाइफस्टाइल को आसान करने के लिए कई नए बिजनेस आइडियाज पनप रहे हैं। रेडी टू ईट कैटेगरी ने वर्किंग वुमेन की कई दिक्कतें सुलझाई है और इस कैटेगरी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ आईडी फ्रेश फूड्स। 2006 में पीसी मुस्तफा, शामसुद्दीन, अब्दुल नजर, जफर और नौशाद इन सभी ने मिलकर इडली डोसा के बैटर को पैकेज फूड फॉर्मेट में बेचने का कारोबार शुरू किया। There was actually a need for some product like this. There was this batter segment which is very unorganized. There was a lot of local players, which actually was packaged in small polythene bags with a rubber band on top, which could be unhygienic, could be not really using great materials, raw materials, water, etc. So the whole idea came up when this was seen by our founder group, and we thought, let's actually start off a batter brand which is basically hygienic, which is natural, which is preservative free, etc. And this all happened in 2006. इडली और डोसा बैटर से आगे बढ़कर ब्रांड ने चपाती, पराठे जैसे प्रोडक्ट्स भी बाजार में उतारे हैं। कंपनी का सारा जोर रसोई में महिलाओं के काम को आसान करने पर है और फोकस है 100% नेचुरल प्रोडक्ट देने पर। The philosophy is very clear that we are never going to get into any category which will have preservatives or chemicals added into it, because we want the household to get products which are just like homemade. So that has been the philosophy, and hence we have been sticking to that. So any category we get into will be always fresh foods category, which will be low shelf life products without any preservatives. क्योंकि ये ब्रांड फ्रेश फूड कैटेगरी में है, इसीलिए ये जीरो इन्वेंटरी मॉडल पर काम करती है। फैक्ट्री में तैयार हुए प्रोडक्ट का रिटेलर्स तक रोजाना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साथ ही कंपनी जनरल ट्रेड यानी आम किराना स्टोर्स के अलावा मॉडर्न ट्रेड यानी बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश जैसे बड़े रिटेल चेन, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स में भी अपना ब्रांड पहुंचा रही है। इसके अलावा B2B मार्केट से भी कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। We have also explored the whole B2B market, which is a large market. These are the markets where there is out-of-home consumption which happens. Now in the B2B space, we supply to a lot of large customers, which are very well known, who use our products, and they prepare end products like dosas and idlis and parotas, etc. with our products. पिछले 10 साल में आईडी फ्रेश को भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर कंज्यूमर ने अपना लिया है, लेकिन शुरुआती दौर में एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने और उनका भरोसा हासिल करने के लिए फाउंडर्स को खासी मशक्कत करनी पड़ी। Main task at hand for us is to build penetration. Currently, we don't think we have even scratched the surface. There's a lot of scope for penetration for us, and that's what we'll be doing in the markets where we are there currently. So that's one. Two is in terms of markets. So we'll also go ahead and open markets. So we are going to open Cochin and Coimbatore, which is going to happen pretty recently. We'll also add lines to our current product line. So we've got an idli batter, we've got parathas and chapatis. We'll also add lines in the current product range so that we can cross sell to our current consumers. So the task at hand is actually increasing penetration through new product lines, through new geographies, and even in the current market we feel that we have just scratched the surface. There is a long way to go. डोसा और इडली बैटर, चपाती और परोठे के बाद कंपनी नए प्रोडक्ट्स भी बाजार में लगातार उतार रही है। जल्द ही आईडी फ्रेश फूड का वड़ा बैटर और डेयरी प्रोडक्ट्स में दही, पनीर भी बाजार में उतारेगी। अभी जो हमारा सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होने वाला है वो होगा वड़ा बैटर और रवा इडली बैटर। इसके अलावा हम ऑल्सो वैल्यू एडेड डेयरी रिलीज करेंगे, जैसे आपका पनीर और दही जो बनता है वो भी अवेलेबल होगा बहुत जल्दी मार्केट्स में। महज 25,000 के स्टार्टअप कैपिटल से शुरू हुआ ये बिजनेस शुरुआत से ही मुनाफा कमा रहा है। 2014 में हिलियन वेंचर्स से 35 करोड़ की फंडिंग हासिल की और कंपनी ने बड़े पैमाने पर खुद को फैलाया।
अब कंपनी ने देश के 8 बड़े शहरों के साथ साथ यूएई मार्केट में भी पहुंच बना ली है। पिछले साल ब्रांड ने 70% ग्रोथ के साथ 100 करोड़ का बिजनेस दर्ज किया। ब्रांड का टारगेट है अगले साल 150% की ग्रोथ के साथ साथ 250 करोड़ का टर्नओवर हासिल करना। फिलहाल अगले फंडिंग राउंड के साथ कंपनी उत्तर भारत और गल्फ कंट्रीज में कदम रखने की तैयारी में है। इस दिलचस्प स्टार्टअप स्टोरी के बाद वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे आपको मिलवाएंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो ऊटी की वादियों में लिख रहा है अपनी सक्सेस स्टोरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज हमारी नजर है दक्षिण भारत के फ्रेश फूड स्टार्टअप्स पर। लॉरेंसडेल एग्रो एक ऐसा स्टार्टअप है जो ऊटी की ठंडी वादियों से आपके किचन तक पहुंचा रहा है एकदम फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियां। देखते हैं एक सफल कारोबार चलाने के साथ किसानों की जिंदगी बदलने वाले इस स्टार्टअप की कहानी। किसी भी दुकान में या रिटेल स्टोर में आपने ब्रांडेड चिप्स, ब्रांडेड स्नैक्स, ब्रांडेड फ्रोजन फूड, ब्रांडेड आइसक्रीम, ऐसी सारी चीजें देखी है, लेकिन ब्रांडेड सब्जियां यानी वेजिटेबल्स का कॉन्सेप्ट मेरे लिए तो नया है, आपके लिए भी नया होगा। जैसे मेरे हाथ में है लीफ के ब्रांड की भिंडी। देखते हैं ये लीफ की कहानी क्या है। ये फ्रेश और साफ सुथरी सब्जियां मुझे ले गई इस मॉल से मीलों दूर। हम हैं क्वीन ऑफ हिल्स उदगमंडलम यानी ऊटी में। यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है और ये भीनी भीनी सर्दी कई सब्जियों को उगाने के लिए बहुत बढ़िया होती है। इसीलिए खेती बाड़ी यहाँ के लोगों के लिए एक बढ़िया काम है। यहाँ किसान मेहनती है और आजकल की जरूरतों को समझते भी है। यहाँ से ये ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां लॉरेंसडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी लीफ बाजारों तक पहुँचाती है। सुबह सुबह जहां हमारे मुंह से शब्द नहीं फूट रहे, वही 2 बजे से यहाँ फार्मर्स आकर अपनी खेती शुरू करते हैं यानी हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। यहाँ से वो गाजर पैक करके अपने एक प्रोसेसिंग प्लांट में लेके जाते हैं जहाँ पे ये अच्छे से धोए जाते हैं। लॉरेंसडेल कई फार्मर्स के साथ मिलकर, लोकल्स के साथ मिलकर काम करता है। लीफ ने अपनी शुरुआत ऊटी से की। पलट विजय राघवन ऊटी के रहने वाले हैं। यहाँ के किसानों की जरूरत को समझकर उन्होंने अपने बिजनेस का प्लान बनाया। इन सब्जियों की बुआई और कटाई से लेकर मार्केट तक ले जाने में उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इन किसानों को पहले अपनी फसल का वो दाम मिलता था जो ब्रोकर तय करता था और यही हाल देश के कई किसानों का है। पलट ने इस समस्या का हल निकालने की ठानी और अपनी कंपनी की शुरुआत इसी मकसद से की। पलट की कंपनी लीफ फसल की कटाई के बाद उसे धोकर साफ करके ऊटी के मेट्रोपलायम के लिए रवाना करती है। In the traditional supply chain, farmer reaches the material to
farmers market. From there it goes to wholesale market, which is the city periphery. From there it goes to semi-wholesale market, and then it get delivered to the retailers by an aggregator from the semi-wholesale market or a vendor. So in this supply chain, the material get handled in multiple levels, and it creates enough damages. Probably I can say 30% of the quantity get lost, or I can say the quality goes by 50% down, and there is huge losses that are happening in that supply chain. சார் முதல்லலாம் வந்து இங்கிருந்து மேட்டுப்பாளையம் போகிற தவிர வேறு இங்கே யாரும் வாங்குறதுக்கு ஒருத்தருமே கிடையாது. லீஃப் வந்ததுக்கு பிறகு தான் இங்கே லீஃபில் கொடுத்து கேஷ் உடனே வாங்கி எவ்வளோ இது ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அட்வான்டேஜாக இருக்குது. முதல்ல இங்கிருந்து மேட்டுப்பாளையம் போகிறது, மேட்டுப்பாளையம் கொண்டு போய் விற்று காசு வாங்கி அவங்கள்ட்ட கமிஷன் கொடுத்து அகெயின் வந்து அவங்க ஒரு 10 days 15 days கழித்து பணம் கொடுத்து அப்புறம் இங்கிருந்து போகிற வேயிங்கில் வந்து அந்த மூட்டையில் வந்து ஒரு மூட்டைக்கு வந்து 2 கிலோ 3 கிலோ மைனஸ் ஆகிடுது. ஏன்னா அது ட்ரை ஆயிடுது. இங்கே வந்து அந்த வெட்டில் அப்படியே கொடுத்துட்றோம், அவங்க அந்த கேஷ் உடனே கொடுத்துட்றாங்க. அந்த மாதிரி லீஃப் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய अडवांटेज। लीफ की टीम लगातार किसानों के साथ मिलकर काम करती है, उन्हें फसल को बेहतर बनाने के नुस्खे बताती है। किसान इसी कंपनी के साथ काम करके काफी खुश है और उन्हें फायदा भी हो रहा है। एक तरफ लॉरेंसडेल ऊटी के किसानों को मदद करता है अपनी फसल और बेहतर बनाने में, तो दूसरी ओर लॉरेंसडेल का अपना खुद का बड़ा सा फार्म है, ऊटी में बसा है, जहां पे वो 100% ऑर्गेनिक लेकिन एक्सोटिक वेजिटेबल्स बनाते हैं, जैसे ज़ुकीनी, आइसबर्ग लेटिस, रेड कैबेज, ब्रोकली वगैरह। लीफ खेती की पूरी वैल्यू चेन को बदल रहा है, उसमें एक साझा अप्रोच डाल रहा है। लीफ किसानों को जेनेटिकली सुपीरियर प्लांटिंग मटेरियल दे रहा है, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है और कोल्ड स्टोरेज भी मुहैया करा रहा है। साथ ही उत्पादों की पैकेजिंग पर भी लीफ खास ध्यान दे रहा है। ये सब वो बदलते रिटेल इकोसिस्टम के अनुसार भी कर रहा है। लॉरेंसडेल एग्रो ने अपनी इसी ऑर्गेनिक, ग्रेडेड और पैकेज सब्जियों को ब्रांड नेम दिया है लीफ, और इस नाम के साथ ये बाजार में 2012 में उतरे। कंपनी का ध्यान इनोवेशन पर भी है, जैसे लेजर पैकेजिंग, ओजोन वॉशिंग, न्यूट्रिशन लॉकिंग और बारकोड के जरिए किसानों को ट्रैक करना। ये पैकेज सब्जियां दक्षिण भारत के कई बड़े रिटेलर्स के स्टोर में जाती है, फिर चाहे वो रिलायंस फ्रेश हो या कुवैया पजामुद्दीन निलायम, जो साउथ का सबसे बड़ा फ्रेश फूड्स रिटेलर है। The major differentiation we feel is the carrots that they have brought in the market is completely different from what you buy in the regular wet markets in the terms of dressing, polishing, and the quality of carrots has been very good and graded. So that has been instant hit with the consumers. Consumers are liking to pick carrots that are chosen, selected and already cleaned and graded. So it makes their job easier, it makes our job easier. So that's one of the primary reasons we started with Leaf, and now we are gradually starting to increase more and more products as we move on. फिलहाल ये मॉडल बाजार में नया है, लेकिन इससे किसानों और रिटेलर दोनों को फायदा हो रहा है। तमिलनाडु के बाद केरला और कर्नाटका में भी ब्रांड कदम रख चुका है। अब नजरें महाराष्ट्र पर है। आपके किचन का काम आसान करने वाले ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनके कारोबार आप छोटे पैमाने पर भी शुरू कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे बात करेंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की यंग ब्रिगेड से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। मेरी सहयोगी राधिका कुमार ने बात की ऐसे 2 यंग एंटरप्रेन्योर से जो यकीन करते हैं मेक इन इंडिया में, जिनके सर पर जुनून है अपने कारोबार को बड़ा करने का और साथ ही लोगों की जिंदगी आसान बनाने का। जानते हैं हेल्थ केयर में राहुल बानेकर और एग्री सेक्टर में सत्य रघु कैसे तय कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता।
आज हम बात करते हैं दो ऐसे स्टार्टअप से जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारे साथ है राहुल पानेकर, को-फाउंडर ऑफ एम्ब्रेस, और सत्या रघु जी, को-फाउंडर है खेती के। सर, आप बताइए कि किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? We are helping save babies throughout the developing world by designing medical devices to keep them warm. We create small size low cost greenhouses for farmers which we use as a tool to make sure farmers earn reasonable and predictable income. और अगर आप हमें थोड़े अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि कैसे ये शुरुआत हुई और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ये कितने बड़े स्केल पर, कितने बड़े पैमाने पर करने की कोशिश कर रहे हो? This started off as a class project when we were students, and none of us had any plans to start a company after that. So there was a partner organization who came to us with a problem saying babies need warmth and can you make something cheaper that works for them. We looked around, came up with a new solution that did not look like anything they wanted. After the class, they were not interested in taking it forward. We realized we can help a lot of babies, so we decided to do something about it. 2012 is when we launched the product, okay? And one by one we sold in private hospitals. Slowly the government took note. Today we have reached 200,000 babies in over 15 countries, and we recently got our first order from the World Health Organization to help babies of Syrian refugees in Jordan. रघु, आप ये बताइए कि आपकी खेती की शुरुआत कब और कैसे हुई थी और आप कितने बड़े पैमाने, कितने बड़े स्केल पर आज ऑपरेट करते हैं? So this started about a decade ago when I noticed a farmer in our village eating mud to feed hunger. So that was too difficult a thing to see and witness. And then we started thinking about what exactly is the problem. And in 2011 we started working in agriculture to understand basically what exactly is the life of farmer, because what we read versus what exactly they are and how they live their life is very different. Soon what we realized is, after all the hard work, the result farmers were not getting because of factors beyond their control. So that seemed like an unfair thing, and the nature was so often unforgiving. So then we started thinking more about what is that we should do to make sure farmers get this income certainty. That is the origin for खेती to come into existence. तो हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर, दो ऐसे सेक्टर्स जिनमें इंडिया को अभी भी बहुत ही ज़्यादा काम करना है, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन मार्केट में स्केलेबिलिटी पाने के लिए क्या सबसे बड़े चैलेंजेस रहे हैं आपके? First thing, we should understand the customer properly. Whom are we giving this product to? So first of all, at that customer, what is the problem that customer has, and how are we trying to give a product? Is it fitting into the life of that customer? So we cannot give something which is exorbitantly costly without any financing, and that person cannot really use that. So we should really look at how do we make something awesome, how do we understand the customer well, and how do we make it reach. In my view, I think today the biggest need is adaptive research plus perfect distribution. These things are really missing today, and we are trying our best to work on that. राहुल, ये बताइए, आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जो ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दूसरे डेवलपिंग नेशंस के लिए भी बहुत ही ज़रूरत है, तो कैसे आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो स्केलेबल हो ग्लोबल लेवल पर? You have to think of scale right from day one. So for example, even though India did not have medical device regulations, credible medical device regulations, we said we will meet international norms. So we chose to meet European medical device regulations. For scale, we decided that for the places we want to reach, service networks don't exist. It's hard to ship products. So our products are small enough that our sales guys actually carry them in their backpacks. And they're designed to be robust. And finally, right from design, okay, it's designed to be low cost to start with. Okay, you can't pare down cost starting with a high cost and cut back. Right from day one, we thought of low cost. These are some examples. शुक्रिया राहुल और रघु हमारे लिए समय निकालने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही. आपको यह शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं. हमारा फेसबुक पेज हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं. मुझे आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @AE Harshada. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज के साथ. बाय बाय एंड टेक केयर.